السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لائن نیو ناول جس کا نام ہے روزانے تقدیر، اسے رائٹ کیا ہے شیخ زادی نے۔ تو چلیے آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جو کھوئی کھوئی اپنی خوابوں میں، وہ جو جاگی جاگی راتوں میں، بس خوش رہنے کا شوق ہے، بس چاہے جانے کا ذوق ہے۔ صبح کا وقت تھا، وہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد عمر بن ابوالخطاب سے نکل رہا تھا۔ سردی کافی تھی، اس نے اپنے ہاتھ جیکٹ کے اندر کیے اور گھر کے لیے نکل گیا۔ کینیڈا میں آپ کو کرسچن کمیونٹی کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ملیں گے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے مساجد اور مدرسے بآسانی مل جایا کرتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں آسمان پر پھیل رہی تھی، چڑیاں چہچہا رہی تھی اور اس وقت نئے دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ مسجد کے برابر میں ہر قابل فارم سپر مارکیٹ موجود ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے تمام تر حلال چیزیں مل جایا کرتی ہیں۔ اس کا مالک بھی ایان کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، اب اپنے سپر مارکیٹ کی جانب ایان سے مسافہ کرتا مڑ گیا۔ انہان ڈیل این پراگ خوبصورت پرسی گھر تھا، جس کے باہر خان ہاؤس کی پلیٹ لگی تھی۔ ایک خوبصورت لان سے ہوتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے چڑھ کر مین دروازہ کھلتا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو ایک بڑا ہال تھا، جس میں سامنے صوفے رکھے تھے۔ سامنے دیوار پر ایک فریم تھا، جس پر اللہ اکبر کی کیلیگرافی کی لگی ہوئی تھی۔ کیلیگرافی کے نیچے آتش دان تھا۔ ہال سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی، جہاں ایان کا کمرہ اور اس کی اسٹڈی تھی۔ وہیں کونے میں ایک گیسٹ روم تھا۔ نیچے ہال کے سائڈ میں ایک جگہ ڈائننگ ایریا تھا اور دوسری طرف ایک کمرہ تھا۔ وہ گھر میں آتے ہی اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک نورانی صورت لیے نفیس سی عورت بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر اس کے دل کو چین مل رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کی تلاوت سن کر سکون ملتا تھا۔ بے شک دلوں کو سکون قرآن پاک کی تلاوت سے ملتا ہے، اور جب وہ ماں کی آواز سے ہو تو دل کی وادیوں میں کھو سا جاتا ہے۔ بس ابھی وہ سکون سے اپنی ماں کی آواز روک گئی۔ اس نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو اس کو لگا کسی نے اس کا دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہو۔ وہ زور سے چلایا، امی! بے چینی کے عالم میں وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ گزرے وقت کی ہر ایک یاد اس کے دل کو تڑپا رہی تھی۔ وہ ایک با ہمت 27 سالہ غبرو لڑکا تھا، چوڑا سینہ، چھوٹے نفاست سے کٹے گھنے بال، چپٹی آنکھیں گندمی رنگ، ہلکی داڑھی، چہرے پہ بے انتہا نور۔ لیکن اس وقت اس کا دل جس درد میں تھا، وہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہونے سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کا ان کے سوا کوئی تھا بھی نہیں۔ باپ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ماں کی طبیعت بھی اب خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں کہتا تھا دل میں تو وہ صرف دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ پاک اس کی ماں کو صحت بخش دے۔ اچانک آئی اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ حالت میں کافی سیریس تھی، لیکن اب وہ کچھ خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر اس سے ان کی طبیعت سے آگاہ کرتے اور ان کا بہت خیال رکھنے کی نصیحت کرتے چلا گیا۔ کچھ دن بعد فاطمہ بیگم کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ ان کی بہت خدمت بھی کر رہا تھا۔ ایک دن فاطمہ بیگم نے ایان سے وہ کہا جسے ایان بالکل خواہش نہ تھی۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا، ایان کا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت پیار سے سلا رہی تھی۔ بیٹا، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ میں چاہتی ہوں اب تم پچھلی باتیں بھلا کر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو۔ اپنی ماں کا بالکل بھی نافرمان نہیں تھا، لیکن اس بات پر اس کی گلگت تن گئی۔ امی، میں بہت آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، میں جس طرح رہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہوں، الحمدللہ خوش ہوں۔ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کب تک ایسے ہی رہو گے؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھے ہو؟ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم ایسے کسی ایک کی سزا خود کو ساری زندگی نہیں دے سکتے۔ اسے نے نرمی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے کہا، میں بھول نہیں سکتا ہمیں اس رویے کو، اس تذلیل کو، اس دکھ کو جو آپ کو ملا نہیں کر سکتا۔ بیٹا معاف کر دو نا انہیں۔ فاطمہ بیگم بہت پیار سے بولی، اپنی بیٹی کو ایسی تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ معاف تو میں نے کب کا کر چکا ہوں، لیکن نئے سرے سے خود کو جوڑنا میرے بس میں نہیں۔ یہ کہہ کر ایان اپنی ماں کے ہاتھ پر بوسہ دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے دن کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن پاک سے کر کے وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ سوٹ پینٹ پہنے، گلے میں ٹائی پہن کر اسے اپنا کوٹ ہاتھ میں لیا ہوا تھا کہ دروازے پر نوکر اندر آنے کا کہہ کر پھر وہ تیاری میں لگ گیا۔ دروازے پر ملازم اسے ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا۔ اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر اس نے آنے کا اشارہ کیا، لیکن جب جیف نے کوئی حرکت نہ کی تو مڑ کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے اس طرح اس کے دل کا حال جان لینے سے جیف کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ سر، میری بیٹی کل رات سے بہت بیمار ہے۔ یہی کہنا تھا کہ اس نے
फ़ौरन कुछ पैसे इसके हाथों में रखे और इसे कुछ दिन के लिए हेड सर्वेंट बुला कर लीव भी दे दी। अयानुल्लाह खान एक बहुत केयरिंग साफ दिल इंसान था। इसका स्टाफ हमेशा परेशानियां लेकर इसके पास आता और वो इनकी मोरली और या माली मदद करने से कभी पीछे न हटा। इसके हर अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो एक बाअमल मुसलमान है। नाश्ता करके वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सारे रास्ते माजिद इसके ज़हन को सुलझाता रहा, लेकिन वो अपनी सोचों को झटक कर बिला आखिर काम में लग गया था। इसके ऑफिस का कमरा बहुत नफीस और खूबसूरत था। शीशे के दरवाजे से अंदर आओ तो सामने इमेज थी जिस पर इसका कंप्यूटर और फाइल्स लिखे से रखी थी। साइड पर एक लेदर का सोफा था जिसके साथ एक फिश एक्वेरियम रखा था। तरफ पर एरिया था। ऑफिस में काम करते इसका फोन बजा। नंबर देखते ही नागवारी मढ़ाई काल उठाकर इस्लाम के असलम काबले से जो खबर मिली वो इसके लिए तकलीफदा थी। इसके इकलौता ताया इंतकाल कर गए थे। ये खबर इसके ताया के घर के मुलाजिम ने दी थी। ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर इसने फोन बंद कर दिया। ताया पहले ही रहते थे। इनकी बीवी भी कुछ साल पहले वफात पा गई थी। वो बेटी शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, जिसने दोबारा पलट कर कभी बूढ़े बाप को ना पूछा था। आज ही एक बार फिर इसकी आंखों के सामने आने लगा। अपनी सोचों को झटक कर वो अपना काम खत्म करके घर के लिए रवाना हुआ, क्योंकि अम्मी को भी फिर ताया की मौत की खबर देनी थी। पहले ही इनकी तबीयत ठीक नहीं न जाने इस खबर पर वो क्या रिएक्ट करें। जो भी थे जो भी थे जैसे भी थे, आखिर को रिश्तेदार थे। कार को आज वो खुद ड्राइव कर रहा था। न जाने कब वो सोचो मैं था के सामने भाग कर आता वजूद इसको सही न दिया और गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर गया। खुद पर काबू पाते वो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा, भागकर इस तरफ आया। वो एक लड़की थी, खूबसूरत, माथे पर चोट की वजह से बेहोश हो गई थी। जल्दी से इसे गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ मुड़ा। एक पल को इसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि इसने कभी किसी नामहरम को आज तक निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। और इसने यूं हाथ में उठाया हुआ था। इस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खून में लथपथ था, जिसकी वजह से सही से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी एक रौनक थी। कोई कोशिश थी जो अपनी जाने खींच रही थी। या अल्लाह कहकर इसने जरा झटका गाड़ी तक की बैक सीट पर इसे लिटाकर वो सीधा ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। डॉक्टर वो रास्ते में ही कॉल करके घर बुला चुका था। स्पीड में वो गाड़ी दौड़ाता हुआ घर लाया। अंदर गाड़ी पार्क करते ही इसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और इस बेहोश वजूद को अपने हाथ में उठाया। वो जल्दी से घर में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा पाँव से खोलकर इसे बेड पर लेटाया। वो होश में आ रही थी। इससे दर्द से कराने की आवाज से इसे अजीब सी बेचैनी उठी। मारिया, मारिया, यही वो जोरदार आवाज में चिल्लाया। जी माँ, जी। मारिया ही कमरे में आते ही बोली, डॉक्टर डॉक्टर वसीम जैसे ही आए सीधा मेरे कमरे में भेजना। मारिया की नजरें इस मासूम वजूद पर पड़ी तो असद समझते सर हिलाकर कमरे से चली गई। इतने में डॉक्टर वसीम भी कमरे में दाखिल हो गए। नर्स अभी इसका चेहरा साफ कर रही थी। खून के हटने से ही चेहरा वाज़ेह होने लगा। मैं बाहर ही हूँ कह के ईयान बाहर चला गया। वो लड़की में न जाने क्या बात थी, ईयान की निगाहें बार बार इसकी तरफ उठ रही थी। बस यही चीज उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि वो अपनी निगाह की हिफाजत करना जानता था। वो इस तरह कभी किसी चेहरे को इसने ना देखा था। वो खुद ही हैरान था इस बात पर। ईयान, फातिमा बेगम ने इसे आवाज दी। कौन है ये लड़की? ईयान ने इन्हें पूरी बात बता दी। लेकिन बेटा, आप तो कभी इस तरह रश ड्राइव नहीं करते। देखिए ये क्या हो गया। न जाने इसके घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे। वैसे ही कौन पता क्या तुम किया कौन पता किया तुमने? नहीं, हमें कुछ पता करने का वक्त ही नहीं मिला। ये सब इतना अचानक हुआ। ये कहते ही एकदम इसका खून से लथपथ चेहरा इसके सामने आ गया। यहाँ कुछ देर के लिए ले ली थम गया, लेकिन अगले ही लम्हे इस्तगफार पढ़कर इसने इसके ख्याल अपने दिमाग से निकाला। अम्मी, मैं सच होकर नमाज पढ़ लूँ, फिर मुझे आपको आप एक बात भी बतानी है, तब तक आप इस पास ही रहिएगा। अभी इसे ताया की खबर भी देनी थी। काश इसे पता ही ना चलती या वो छुपा ले, क्योंकि अभी वो हमें दुख नहीं देना चाह रहा था। बट आप ये कैसी हैं आंटी? ये बिल्कुल ठीक है। सर पर ज़्यादा गहरी चोट नहीं थी। हाँ, पैर पे एक चोट थी, लेकिन ज़्यादा गहरी नहीं थी। खैर, मैंने पट्टी कर दी है। बस वो घबरा कर शायद बेहोश हो गया। बाकी परेशानी की कोई बात नहीं। अभी सो रही है। मैंने दवाई दे दी है, सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वसीम अयान का दोस्त था। शुरू में जब अयान और इसकी माँ कनाडा आए थे, तो वसीम और इसकी फैमिली ने इन्हें बहुत मदद की थी। इस दौरान वसीम और अयान की दोस्ती हो गई थी। बेटा, खाना खाकर जाओ। ये नहीं, नहीं आंटी, आपकी बहू घर पर वेट कर रही है। चलता हूँ। फिर भी कोई बात हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। मैं आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा बेगम एक नज़र सच्ची पर डालकर डाइनिंग रूम की जानिब बढ़ गई। खाना खाने के बाद अयान उठकर अपनी अम्मी के पास आया। इनको अपने हाथ में लेकर ताया की बदगी की इत्तला दी। कि अम्मी रोने लगी। अम्मी, मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि आप जानती हैं ना, मौत जिनके अल्लाह के हाथ में है। जी बेटा, लेकिन 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 कुछ नहीं। अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगे।
इनके गले में हाथ डालकर इन्हें बहुत आराम से इनके कमरे में रात के 3 बज रहे थे। अचानक एक जोरदार चीख से इसकी आँख खुली। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। मुझे वापस जाने दो, मैं ये सब नहीं करूँगा। अम्मी। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे के पास आया। वो नींदों में चिल्ला रही थी। इसने इसको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप की जा रही थी। इसने कस कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे वो एकदम होश में आ गई। झटके से उठकर इसे अपनी गहरी आंखें खोली। बड़ी बड़ी आंखों से वो इसको देख रही थी। अयान का हाथ अभी भी इसके मुंह पर था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। नन्ही इसने तभी इसने ईहान को जोर से धक्का दिया। वो पीछे हटा तो शर्मिंदगी महसूस करने लगा, क्योंकि इसका हाथ इसके मुंह पर निशान छोड़ गया था। सॉरी, आप चीख रही थी, इसलिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा। ईहान ने नजरें फेर कर कहा, कौन हो तुम? और मैं ये कहाँ हूँ? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो भी दुपट्टा सर पर ओढ़कर गिराई चेहरा। अब इसने कमल छुपा लिया था। आप आज मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। एकदम से इस सब कुछ याद आया और इसने डर कर आंखें मिचली। अयान ने इसकी आंखों में आया डर नहीं देखा था। मैं जानना चाहती हूँ। इस मासूम लड़की ने चेहरे पर ढेरों घबराहट लिए कहा, अभी नहीं, आप आराम करें, सुबह मैं खुद आपको आपके घर छोड़ाऊंगा घर। उसने ये कहा और जोर वो कतार फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? अयान के कदम इसकी तरफ बढ़ने लगे, जिसे देखते ही इसे अपना मुंह मजीद दुपट्टे में छुपा लिया। अयान ने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी थी। इसे पा लेने की असर इसके दिल में इस लम्हे जाग गई थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप सो जाएं, लेकिन प्लीज जरा ख्याल रखिएगा। मेरी अम्मी सो रही हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी इस तरह ना चलाइएगा। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। इसने नीचे नजरें किए हुए कहा, ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन नींद इसको इसके बाद ही ना आई। अगले दिन वो कमरे में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए, इसने सलीके से चादर खुद पर लपेटे हुए कहा। फातिमा बेगम इसके कमरे में चेहरे पर ढेर मुस्कुराहट सजाए दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपकी अभी तबीयत कैसी है? आपकी काले लंबे बाल, गहरी गोल आंखें जिनमें उदासी साफ झलक रही थी, कांपते अनाबी होंठ, और जो दिल में छुपे डर की गवाही दे रहे थे। गोरा मासूम चेहरा अपने ऊपर घेरो तकान लिए हुए था। मैं ठीक हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपके घर वाले भी परेशान हो रहेंगे। इनका नंबर दे दें, इन्हें भी इत्तला दे देते हैं। नहीं आंटी, मेरा ये यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। इसने कुछ समझ ना आया तो झूठ बोल दिया। यान अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर रहा था। घर में दो ही लोग थे तो खामोशी होती थी। माशान घर जाना चाहती है, फातिमा बेगम किचन याद आन पर बोली। माशान वो ज़ेरे लब दोहराया। हाँ हाँ ठीक है अम्मी, आप इनसे इनके घर का नंबर एड्रेस ले लें, इनके घर बितला दे देते हैं। नहीं बेटा, वो यहाँ किसी हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई के लिए पाकिस्तान से आई हुई है। रात का मंजर एकदम इसकी आंखों के सामने आया। क्या कुछ और बताया इन्होंने आपको? नहीं बेटा, शायद घबराई हुई थी, क्योंकि किसी के घर रहना आसान थोड़ी है। तुम इसे छोड़ा, आखिर वो किससे इतनी खौफ ज़्यादा है, किससे दूर रहना जाना चाहती है? वो भी रात की इस हालत पर डिस्टर्ब था। अम्मी, मैं ड्राइव को वर को बोल देता हूँ, आप इसे इसके साथ भिजवा दें। नहीं बेटा, ये कोई बात नहीं, तुम खुद इसे छोड़ कर आओ। वो इसके साथ मजीद एक सेकंड भी गुजारना नहीं चाहता था। कुछ पल की यूं मुलाकात इसके जहन से ओझल नहीं हो रही थी। बार बार इसका चेहरा इसकी नज़रों में आता, इसकी खौफजदा आंखों से इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो दोबारा कभी इसे मिलना नहीं चाहता था। औरत के मामले में वो वैसे भी बहुत एहतियात से काम लेता था। उसकी नज़र में औरत एक मतलब कहती जो सिर्फ आपके साथ अपने मतलब के लिए रहती है। छत पर छत के घर से, बच्चों की हिफाजत के घर से, इसे नाज नखरे उठाने के घर से, औरत के नाम पे इसे सिर्फ माँ की हस्ती बेदर्द लगती थी, जो सिर्फ अपने बच्चों का भला चाहती है। अयान अल्लाह खान जी, अम्मी कहीं खो गए हो? अगर तुम नहीं जा रही इसे छोड़ने तो फिर मैं चली जाती हूँ। अच्छा, थोड़ी लगता है हमारी वजह से इस बेचारे को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, और हम यूँ इसे ड्राइव के साथ छोड़ दें? फातिमा बेगम ने मछली माँ का पैंतरा आजमाया, जो काम कर भी गया। अच्छा सही, ले जाता हूँ। अगर इन्होंने नाश्ता कर लिया तो इन्हें कह दें कि बाहर आ जाए। वो कहते ही रिहा बाहर चला गया। माशान बेटा, एक दो दिन यहीं रुक जाती, तबीयत ठीक हो जाती तो फिर चले जाती। नहीं आंटी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। वैसे ही आपको बहुत तकलीफ दे दी। दुपट्टे को अच्छी तरह मुंह पर लपेटे हुए इसने कहा, फिर भी बेटा, जब तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी जरूर आंटी, इसने सर को हल्की जनबिश देते हुए कहा। चलो जल्दी करो, अयान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अयान का नाम सुनकर इसका दिल जोर से धड़का था। रात को ना जाने इसने बेहोशी में क्या कुछ कह दिया था। वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो घर से निकली, अयान की नजर इसकी जानब थम गई। चेहरे को मुकम्मल छुपाए हुए इसकी तरफ आ रही थी। लेकिन रात में तो इसने दुपट्टा तक ना ओढ़ा था हुआ था। एकदम इसके ध्यान में ख्याल आया। इसने अपना सर झटका। ये लड़की इसे कुछ मशकूक लगी। वो अब इसके बारे में मजीद नहीं सोचना चाहता था।
इसने इसके हॉस्टल छोड़कर वो इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहता था। मुकब्बल भी घर से निकलने वक़्त यही सोच में था कि जल्द से जल्द ये चैप्टर क्लोज़ हो, लेकिन इसे अभी भी फ़िक्र थी कि वो जाएगी कहाँ। दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते इसने सलाम किया। अयान ने वालेकुम सलाम कहा और ड्राइव करने लगा। इसके बाद दोनों ने कोई बात ना की। मुतलबा जगह माशान को छोड़कर वो ऑफ़िस के लिए रवाना हो गया। कुछ सोचते हुए इसने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाई और कुछ हदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। वो गाड़ी से उतरकर अंदर तो चली गई, लेकिन इसके जाते ही वहाँ से निकल गई थी। चेहरे पर खौफ के तासुरात वाज़ेह थे। वो कहीं छुप जाना चाहती थी, कहीं कैब रुको। अगर वो समय बैठकर चली गई माज़ी। आज से 27 साल पहले फ़ातिमा बेगम एक छोटे से बच्चे को हाथ में लिए बैठी थी। मेरा प्यारा बेटा बड़ा होकर अपने बाबा की तरह बनना। मेरा अयान अब्दुल्ला खान के यहाँ पहले बेटे की विलादत हुई थी। सब बहुत खुश थे। अब्दुल्ला खान इस वक्त पाक फौज में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। सबको इन्हीं का इंतज़ार था। दरवाज़ा खुलते ही और अब्दुल्ला खान चेहरे पर बेइंतहा खुजली है। सच से मिलते इनके बड़े भाई शहीद इन पर इनका परजोश इस्तकबाल कहते आखिर को खानदान का पहला बेटा था। सबसे बहुत खुश होते अयान को हाथ में लेकर और सब बहुत दुआएं देते। एक नज़र फातिमा पर डालकर मुस्कुरा कर सर को झुकाते फातिमा भी मुस्कुरा देती हैं। अयान 2 माह का था। इन्हें वापस जाना था बेटे के साथ, इतना कम वक्त गुजारना। पर वो जहाँ अफ़सरदा थे वहीं अपने फातिमा की मोहब्बत इस मोहब्बत के आगे कहीं ज़्यादा थी। मीर बहादुर बाबा जल्दी आएंगे और अपने बहादुर से मिलेंगे। तब तक आपको अपनी अम्मी का ख्याल रखना है। बड़ी होकर अपने भी मुल्क की खिदमत करनी है, कभी ना भूलिएगा। अयान का मातम सुनकर फातिमा बेगम को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो वहाँ से निकल गए। साल बीतते गए और जब आते इसे पाक फ़ौज में डालने और वहाँ का ख्याल रखने की नसीहत ज़रूर करते। वो 10 साल का था जब इसके बाबा शहीद होने की खबर मिली। वो बहुत दुखी था, लेकिन इसे अपनी माँ का ख्याल रखना था। इसके बाप ने इसकी माँ की ज़िम्मेदारी ही इसे दी थी। अस्सलाम वालेकुम शफ़ीक भाई। वालेकुम सलाम बहन। अब आप यहाँ अकेली हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलें और आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। हाजिरा बेगम जो बहुत हमदर्द खातून थी, इन्होंने भी हमें बड़ी फातिमा बेगम बहुत मना करने के बावजूद इन्होंने इन्हें मना ही लिया। हाजिरा बेगम तो इनके राज़ी होने से दिल से खुश थी, लेकिन शफ़ीकुल्लाह खान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। हाजरा बेगम और शफीक साहब इस्लामाबाद में रहते थे। वहाँ इनकी आलीशान कोठी थी। यह खान कोठी थी। सालों से इनका खानदान यही रहता आया था। अब यहाँ शफीक साहब, इनकी बीवी और एक बेटी रहती थी। हाजरा बेगम को संभल की पैदाइश के वक्त कैंसर तशखीस हुआ था, जिसका इलाज चल रहा था। फिर भी जिंदगी से भरपूर हाजरा बेगम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस कदर बीमार है। यहाँ और फातिमा बेगम को इन सब ने बहुत इज्जत से घर में जगह दी। देखते ही देखते इन दोनों का दिल वहाँ आसानी से लग गया। सुंबल से अयान की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों हर वक्त साथ रहते। ताया भी दोनों में कभी फर्क न करते। हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे कि अयान की कैडेट कॉलेज लाहौर से एडमिशन लेटर मौसूल हुआ। सब बहुत खुश थे। सुंबल ने तो पूरे घर में घूम घूम कर हंगामा बर्पा कर दिया। ताया ने भी फक्र से अयान के सर पर हाथ रखा। माँ का दिल बेटे से दूरी पर अफसुर्दा था, लेकिन इन्हें भी पर नाश्ता वैसे फौजी देखना चाहती थी। अयान तो मानो मान पर हो बचपन से इसने यही तो ख्वाब देखा था। साल बीतते गए। जब वो घर आता सब इसका बहुत ख्याल रखते। सुबह से इसे दिल में पसंद करने लगी थी और आलम यह था कि वो भी अब इसके बारे में जज्बात रखता था, लेकिन इस सब के बावजूद वो कभी कभार इसको अजीब उलझन में डाल देती थी। सुंबल ज़रा आज़ाद ख्याल रखी थी। इकलौती होने की वजह से आज तक कोई बात ना टाली गई थी। वो खुद पर भी बहुत थी। कड़ी नाक, गुआरा रंग, सब्ज़ आँखें, लंबा कद, बिलाचुआ एक खूबसूरत लड़की थी। इसी दरमियान हाजरा बेगम भी इंतकाल कर गई। घर में सोनापन छा गया। सुंबल भी बहुत खामोश रहने लगी। फातिमा बेगम के बेहद प्यार पर भी वो कमरे से ना निकलती। अयान को जैसे ही ये खबर मिली, वो लीव लेकर घर आया। अयान के आने से सुंबल का कुछ दिल बहला। ये देखकर फातिमा बेगम ने इसको अपनी बहू बनाने का फैसला किया। ताया तो गोया जिस इंतजार में थे वही हुआ। वो झट मान गए। सादगी से दोनों की मंगनी कर दी गई। वो दोनों बहुत खुश थे। अयान जब आता इसके लिए तो पिल्लाता, लेकिन मंगनी के बाद से अयान इससे ज़रा फासला रखता, जिस पर सुंबल ने एतराज़ किया। अम्मी, पहले की बात और थी, लेकिन मेरी जल्दी से इससे शादी हो जाएगी। मुझे ठीक नहीं लगता इससे इस तरह मिलना। हम दोनों बाल गए क्योंकि अपने पाक से रिश्ते से फ़ोन सुनिए, मेरी ट्रेनिंग बस ख़त्म ही होने वाली है। आप शादी की तैयारी करें। शादी का नाम सुनकर जहाँ वो खुश थी, वहाँ अयान की इस तरह कहने पर तिलमिला उठी थी। वो चाहती थी कि वो अयान के साथ घूमे फिरे, बातें करे। अयान इसके नाज़े नखरे उठाए जैसे इसके फ्रेंड्स सर्कल में सब करते थे। इसने की हंगामा बर्पा कर दिया। अयान को बहुत गुस्सा आया। बड़ों ने जैसे तीसरे इनकी सलाह तो कर दी, लेकिन सुंबल को यह अपनी बेइज्जती लगी। सुंबल की बाहर दूसरे लड़कों से दोस्तियां थी, वो सब में काफ़ी मशहूर थी। इसे अयान
تنگ نظر لگتا تھا، پٹھان کہہ کر وہ اس کی سوچ جھٹک دیا کرتی تھی، اسے آئے دن پرپوز